Good morning students. Welcome to Shiv Jyoti Educational Group Kota. This is Barkha Gaur, your biology teacher. How are you students? I hope you all are fine and doing well at your places. Students, as you know, we have already started chapter 6 of class 12 biology and you are familiar with it. You also would have gone through the two videos of this chapter, that is part 1 and part 2, and I hope you have understood also. Now we are going to continue part 3 of this chapter and this is the last part. You know that the chapter is quite long, so we have to, today we are going to complete this. Now before we start our video, I suggest you to open the books. We are on page number 111 and we are going to start with genetic code. So the other topics of this video will be of course genetic code, then translation, regulation of gene expression, human genome project, and the last is DNA fingerprinting. Okay students, so let us start with the genetic code and take your book page number 111, and in between I will tell you to mark the important questions also or important definitions and diagrams. So let us start with the genetic code. As we know, we don't know कि what information, कितनी सारी information जो हमारी body में होती हैं वो उनको study करने के लिए जो codes बनाए गए that are called genetic codes. That means the codes which direct the sequence of amino acid. तो ये जो codes होते हैं ये किससे बने हुए हैं? By the sequence of amino acid and they help to synthesize the proteins. George Gamow proposed that if 20 amino acids are there and they have to code 4 bases, they are coded by 4 bases, then the code should be made up of 3 nucleotides. तो ये इन्होंने इस तरह से हिसाब लगाया कि 4 बेसिस हैं जो 20 अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे, देन देयर शुड बी 3 न्यूक्लियोटाइड्स, 3 न्यूक्लियोटाइड्स के ये बने होंगे. दैट मीन्स इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 4 की पावर 3 दैट इज 64. अगर 4 टू द पावर 2 लेते तो ये ओनली 16 होता विच इज़ लेस देन 20. सो दैट द कोडोन वॉज प्रपोज टू बी ट्रिपलेट, मीन्स 3 के सेट्स बनेंगे बेसिस के, दैट विल फॉर्म द जेनेटिक code. Now Hargobind Khurana developed a chemical method to synthesize RNA molecules with defined combination of bases. तो उन्होंने ये बताया कि कौन से बेसिस के कॉम्बिनेशन से कौन सा जेनेटिक कोड बनेगा, या हम कह सकते हैं कौन से बेसिस के कॉम्बिनेशन से कौन सा एमिनो एसिड बनेगा. Nirenberg developed cell-free systems for protein synthesis which help the code to be deciphered. मतलब उन कोड्स को उनका मीनिंग समझना, डिसिफरिंग मीन्स उनके कोड को डिकोड करना, तो दैट वाज डेवलप्ड बाय नीरेनबर्ग. देन वन एंजाइम इज देयर, सेवेरो-ओकोआ एंजाइम, हेल्प टू पॉलीमराइज आरएनए, आरएनए का पॉलीमराइज करने में विद डिफाइंड सीक्वेंसेस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, and finally gave rise to checkerboard for genetic code. So let us see the checkerboard of genetic code. You can refer on page number 112 for this genetic code. Now how to read this genetic code ये भी मैं आपको समझाती हूँ, और ये genetic code कैसे बनेंगे, किस तरह से combination हम बनाएंगे वो आप समझ लीजिए एक बार. Now देखो यहाँ पे bases arrange किए हुए UCAG, uracil, cytosine, adenine and guanine. देन यहाँ पे भी इसी तरह से अरेंज कर रखा है UCAG, और यहाँ देखो एक ही बॉक्स में चारों बेस दिए हुए हैं. यहाँ पे तो अलग अलग बॉक्स के ऊपर एक बेस दिया है, यहाँ पे ये ऑल द 4 बेसेस आर रिटन हियर. अब इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे तो उससे हमारा जेनेटिक कोड बनेगा. सपोज फर्स्ट कॉम्बिनेशन चेक करते हैं हम, U और यहाँ से U, तो ये क्या बना U. तो ये जो बेसिस का एक ट्रिपलेट है, दिस ट्रिपलेट ऑफ बेस कोड फॉर PHE, दैट इज फिनाइल एलेनिन. तो ये एक एमिनो एसिड है और इसका जेनेटिक कोड UUU है. ऐसे ही आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन अगर चेक करो, सपोज ये CCU चेक करें तो दिस 1C इज फ्रॉम हेयर, एक यहाँ से है और ये U यहाँ से लिया. तो इस तरह से ये पूरा एक चेकर बोर्ड हमारे सारे जेनेटिक कोड्स को बताता है, एंड ईच जेनेटिक कोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर एमिनो एसिड. तो ये फिक्स है कि इस जेनेटिक कोड के लिए ये एमिनो एसिड विल बी देयर. Now we'll see the features of genetic code. ये बहुत important topic है. You have to learn this. Board point of view से this is important. You may be asked to write
ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द सेलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, या फिर इनकी जो फीचर्स हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। कैसे आएगा वो अभी मैं बताती हूँ आपको। सपोज द फर्स्ट फीचर इज कोडोनस ट्रिपलेट। हमने देखा 3 बेसिस से मिलकर एक ट्रिपलेट कोड बना है, और ऐसे अगर हम कॉम्बिनेशंस बनाएं तो 64 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। आउट ऑफ 64, 61 कोडॉन्स कोड फॉर एमिनो एसिड्स, जबकि जो बाकी 3 हैं वो स्टॉप कोडॉन्स हैं, वो कोई किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। 1 कोडॉन कोड्स फॉर अ सिंगल स्पेसिफिक एमिनो एसिड। ये एक स्पेशल फीचर है कि एक कोड एक एमिनो एसिड को ही कोड करेगा, एंड सो दीज कोड्स आर अनएम्बिगुअस। तो ये जो फीचर है कि 1 codon codes for 1 amino acid, this is called unambiguous feature. Other feature is that codons are degenerate, and since some amino acids are coded by more than 1 codon, मतलब एक कोडॉन कई सारे एमिनो एसिड को कोड कर सकता है। Some amino acids are coded by more than 1 codon. Genetic code is universal. That means एक पर्टिकुलर कोड जो है वो सभी स्पीशीज में उस पर्टिकुलर एमिनो एसिड को ही कोड करेगा। 1 कोडॉन कोड्स फॉर द सेम एमिनो एसिड इन ऑल द स्पीशीज। अगर ह्यूमन में एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड कर रहा है तो बैक्टीरिया में भी उसी एमिनो एसिड को कोड करेगा। तो दिस फीचर इज कॉल्ड यूनिवर्सल। कोडॉन्स आर रेड कंटिन्यूस, कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप, नो पंक्चुएशन मार्क इज देयर, उसको हम कंटिन्यूस रीड करते हैं। AUG ये जो कोड है ये इसके 2 फंक्शंस हैं। एक तो इट कोड्स फॉर मिथियोनाइन, मिथियोनाइन एमिनो एसिड को कोड करता है। दूसरा इट एक्ट्स एट स्टार्ट कोडॉन। तो कोई भी जो प्रोसेस हम देखेंगे उनको स्टार्ट कराने में मिथियोनाइन यूज आता है। म्यूटेशंस, अच्छा वी हैव सीन दिस। देन म्यूटेशंस इंक्लूड, म्यूटेशंस भी हो सकते हैं जेनेटिक कोड्स में, दैट इज इंसर्शन, डिलीशंस एंड रीअरेंजमेंट। मीन्स द कोड्स कैन बी, बीच में किसी भी एमिनो एसिड को अगर या किसी बेस को हम रिमूव कर दें या ऐड कर दें तो उससे क्या होगा, म्यूटेशंस होंगे। म्यूटेशंस रिजल्ट्स इन चेंज्ड फिनोटाइप। म्यूटेशन अगर हो गया तो फिनोटाइप चेंज होगा, फिनोटाइप चेंज होगा तो जीनोटाइप भी चेंज होगा। दैट मीन्स अपीयरेंस विल ऑल्सो चेंज। दैट इज फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे अगर ग्लूटामाइन की जगह वैलिन आ जाता है, जैसे GUA की बजाय GUG आ जाता है, देन व्हाट विल हैपन, द कोड विल चेंज एंड बीटा ग्लोबिन चेन का जो हीमोग्लोबिन है उसके RBCs बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और सिकल सेल एनीमिया में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सच म्यूटेशंस आर कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशंस। नाउ उन जेनेटिक कोड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज हमने ये सेंटेंस लिखा, राम हैज़ रेड कैप। ये 3 के सेट्स बने हुए हैं। तो ये मान लीजिए ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट कोड ये सब है। अगर हम इसमें बीच में कोई भी एक लेटर इंसर्ट कर देते हैं, सपोज हमने रेड के आगे B इंसर्ट कर दिया, तो अब कोड तो ट्रिपलेट ही होगा। तो ये इस तरह से रीड किया जाएगा, B यहाँ इंसर्ट कर दिया तो BRE, अब ये एक सेट हो गया। देन जो अब बचेंगे फिर वो अगेन 3 के सेट्स बनाएंगे। 2 लेटर्स ऐड कर देंगे तो अगेन ये 3 के सेट बनेगा। 3 एक और ऐड कर दिया तो ये बन गया पूरा एक ट्रिपलेट कोड बीच में इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से इंसर्शन से ऐसे होता है। ऐसे डिलीशन भी हो सकता है। द कोड में से अगर अपन एक लेटर डिलीट करेंगे देन ऑल्सो इट मेक्स डिफरेंट सेंस। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड कि इंसर्शन और डिलीशन ऑफ अ सिंगल बेस पेयर, अगर एक सिंगल बेस पेयर ऐड होता है या डिलीट होता है तो उससे पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। द मीनिंग ऑफ द फ्रेम विल बी चेंज्ड, और इसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। अगर पूरा का पूरा एक 3 का सेट अगर इंसर्ट होता है देन इट विल नॉट change the meaning, it will remain same and the frame will remain unaltered, तो वो वैसे की वैसे ही रहेगी। Now we'll see structure of transfer RNA and the process of translation and regulation of gene expression. So let us start with the transfer RNA. You can refer page number 114. This is very important topic again, so you have to learn, remember the structure of transfer RNA. ये क्या होता है और कैसे ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। तो ट्रांसफर RNA इज एन अडाप्टर मॉलिक्यूल। ऑन वन हैंड इट रीड्स द जेनेटिक कोड एंड ऑन द अदर हैंड इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक एमिनो एसिड। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी और आप बुक में पेज फिगर 6.12 रेफर कर सकते हो। फॉर दिस
कि किस तरह से एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह tRNA दैट इज ट्रांसफर RNA वर्क करता है, और उसमें एक तरफ तो एमिनो एसिड बाइंड होंगे और दूसरी तरफ इट विल कोड फॉर द जेनेटिक कोड्स। तो ट्रांसफर RNA इज एन एडाप्टर मॉलिक्यूल, ऑन वन हैंड इट रीड्स द जेनेटिक कोड, एक तरफ जेनेटिक कोड रीड करता जाएगा और दूसरी तरफ एमिनो एसिड को बाइंड करता जाएगा। देन ट्रांसफर RNA ऑल्सो हैज़ एंटी कोड लूप, नीचे की तरफ अभी डायग्राम में देखिएगा एंटी कोडॉन लूप होता है जिसमें बेसेस लगे होते हैं, एंड दीज बेसेस विल जॉइन टू द मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री के बेस पर जॉइन होंगे एंड एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड वेयर इट बाइंड्स टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एमिनो एसिड्स। हाउ? लेट अस सी। इनिशिएशन ट्रांसफर RNA, दिस ट्रांसफर RNA इज एसेंशियल फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेशन की पूरी प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने के लिए ये काम में आता है, एंड हैज़ AUG इन एंटी कोडॉन लूप। तो एंटी कोडॉन लूप में AUG होगा जो कि मिथियोनाइन को कोड करता है, एंड मिथियोनाइन इन एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड। देयर आर नो tRNA फॉर स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन के लिए कोई tRNA नहीं आता है। ये इस तरह का डायग्राम आपकी बुक्स में दिया हुआ है, ये देखिए ये पूरा ट्रांसफर RNA का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रेट ही होता है लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ये दोनों जो इसके एंड्स है 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड ये पास पास आ जाते हैं और एक क्लोवर लीफ का स्ट्रक्चर एक्वायर करते हैं। तो नाउ यू कैन सी एक तरफ ये एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है एंड एक तरफ ये एंटी कोडॉन लूप है जिसमें ये कोड्स है, और इसी के कॉम्प्लीमेंट्री के बेस पर जैसे यूरेसिल विद एडेनाइन, साइटोसाइन विद गुएनाइन एंड एडेनाइन विद यूरेसिल, ये इस तरह से कंबाइन होते जाते हैं एंड द ट्रांसलेशन प्रोसेस इज कंटिन्यूड। तो एट अ टाइम 2 ट्रांसफर RNA ये mRNA से जुड़ते हैं। ये डायग्राम भी मिलेगा आपको कुछ बुक्स में। ये एमिनो एसिड बाइंडिंग लूप है, ये ट्रांसफर RNA है ऐसे ही पूरा, ये एंटी कोडॉन और कोडॉन ऐसे ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर, दिस इज एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे एमिनो एसिड बाइंड हो रहा है, ये एंजाइम्स बाइंड होते हैं यहाँ पे, ये एंटी कोडॉन लूप है, एंड दिस इज राइबोसोमल बाइंडिंग साइट जहाँ पे राइबोसोम अटैच होगा। नाउ लेट अस सी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या है एक्चुअली? The mRNA contains the genetic information which is translated into amino acid। हमने अभी तक क्या क्या देखा था? एक तो रेप्लिकेशन देखा है ना, देन ट्रांसक्रिप्शन देखा, नाउ ट्रांसलेशन मीन्स जो मैसेंजर RNA बना उससे प्रोटीन बनाने जा रहे हैं अब हम। एमिनो एसिड्स आर पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। तो व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड? पॉलीपेप्टाइड मीन्स द चेन ऑफ पेप्टाइड्स, और चेन ऑफ पेप्टाइड्स मीन्स जो एमिनो एसिड की चेन होगी उससे क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो एमिनो एसिड्स आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो चार्जिंग ऑफ tRNA। tRNA जब आएगा और उसका चार्जिंग होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, प्लीज मार्क देम एंड दीज आर द स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? चार्जिंग ऑफ tRNA, एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA भी कहते हैं इसको। It takes place in this amino acids are activated, उनका एक्टिवेशन होगा in the presence of ATP and are linked to their corresponding tRNA। तो एमिनो एसिड्स एक्टिवेट होंगे और tRNA से जुड़ जाएंगे, तो इसको एमिनो एसाइलेशन भी कहते हैं। राइबोसोम्स, अब यहाँ पे राइबोसोम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दे एक्ट एज वर्क बेंचेस फॉर ट्रांसलेशन। इसी के ऊपर mRNA अटैच होगा और ये वर्क बेंचेस कहलाते हैं। दे हैव 2 सब यूनिट्स, एक स्मॉलर एक लार्जर सब यूनिट होती है। स्मॉलर सब यूनिट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद मैसेंजर RNA, मैसेंजर RNA से जुड़ता है स्मॉलर सब यूनिट, और जो बिगर यूनिट है उससे ट्रांसफर RNA जुड़ेगा, एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज इनिशिएटेड। ट्रांसलेशन यूनिट इन एन mRNA इज द रीजन विच इज सराउंडेड बाय या फ्लैंक्ड बाय, एक साइड स्टार्ट कोडॉन होगा, एक तरफ स्टॉप कोडॉन होगा, जो पूरा मैसेंजर RNA है उसके दोनों तरफ होंगे। Some untranslated regions are also there that are not themselves translated, ये translate नहीं होते हैं but are required for efficient process of translation। They may be present before start codon या after stop codon के बाद ये present हो सकते हैं। Initiator transfer RNA recognize करता है start codon को और process start होता है। Then transfer RNA amino acid complex, ये पूरा एक complex बन जाता है tRNA और एमिनो एसिड से मिलकर, ये कॉम्प्लेक्स बाइंड होता है mRNA से।
नाउ जो उसका ट्रांसफर आरएनए का एंटी कोडॉन लूप है वो mRNA के कोडॉन से जॉइन होगा। ट्रांसफर आरएनए मूव फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन। अभी हम देखेंगे डायग्राम से और एनिमेशन से कि कैसे ट्रांसफर आरएनए कोडॉन टू कोडॉन मूव होता है और एमिनो एसिड्स ऐड होते जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलॉन्गेशन। तो पहले तो इनिशिएशन हुआ, देन इलॉन्गेशन, देन वन रिलीज फैक्टर ऑल्सो बाइंड्स to stop codon to terminate the translation, and the last process will be termination. This diagram is given in your book, page 115, figure 6.13. So you can refer the figure for the structure of means the process which is shown by this diagram, process of translation. जैसे ये smaller unit of ribosome है, ये bigger unit of ribosome है, this is messenger RNA, this is 5 prime end, this is 3 prime end. ये तो codons हैं और ये ट्रांसफ़र आरएनए आता है। ट्रांसफ़र आरएनए अपने साथ एक एमिनो एसिड भी लाता है और ये अपने एंटी कोडॉन को इसके कोडॉन से जॉइन कर देता है एंड देन एमिनो एसिड्स आर चेन ऑफ एमिनो एसिड्स या पॉलीपेप्टाइड चेन इज फॉर्म्ड। यहाँ देख सकते हो आप, ये ट्रांसफ़र आरएनए आया, अपने एंटी कोडॉन्स को मैसेंजर आरएनए के कोडॉन से जॉइन कर देता है। वन मोर एनिमेशन इज देयर, आप एक एक करके देखो। ट्रांसफ़र आरएनए आ रहा है, जॉइन करता है और मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच करके फिर एक एक एमिनो एसिड को रिलीज करता जा रहा है ना। तो दिस इज हाउ ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस एंड द पॉलीपेप्टाइड चेन इज फॉर्म्ड। अब हम देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन, कैसे जीन्स रेगुलेट होते हैं, मतलब जीन्स का एक्सप्रेशन कैसे होगा। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कुड बी एक्सर्टेड एट फॉलोइंग लेवल्स। कहाँ कहाँ रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। वन इज़ ट्रांसक्रिप्शन लेवल, सेकेंड इज़ प्रोसेसिंग लेवल। जब स्प्लाइसिंग हुई थी हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इंट्रॉन और एक्सॉन में से इंट्रॉन रिमूव होकर एक्सॉन जॉइन हुए थे। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड द लास्ट इज ट्रांसलेशनल लेवल। तो यहाँ सब जगह पे जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल होता है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिक, एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑल्सो। देन एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स कोडिंग फॉर एंजाइम इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम इज अवेलेबल। मीन्स जब वो सबस्ट्रेट अवेलेबल होगा तभी वो जीन्स की कोडिंग होगी या एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स कोडिंग विल टेक प्लेस। तो ये कैसे होता है हम बैक्टीरिया की हेल्प से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ लैक्टोज is available, then beta galactosidase will be formed and this beta galactosidase will help lactose to break down into glucose and galactose. E. coli जो बैक्टीरिया है, it synthesizes beta galactosidase only when lactose is available. प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है देख लेते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड बाय कंट्रोलिंग द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन। The activity of RNA polymerase at a given promoter is regulated by accessory proteins. तो कई proteins से ये regulate होता है and the accessory proteins affect the ability of promoter to recognize start sites. तो ये सब पहचान करके फिर process initiate होता है। A regulatory protein could be activator और repressor. तो activate तो क्या है, process को initiate करने में help करेगा और process को अगर नहीं चलाना है तो repressor will bind to the operator. तो कैसे होगा अभी हम देखते हैं। Accessibility of promoter is also affected by operators. Operator is the region located adjacent to promoter. Promoter क्या करता है, इनिशिएट करेगा और उसी के साथ में ऑपरेटर भी लगा रहता है। अभी हम सारे जीन्स के पार्ट देखेंगे। Each operon, operon मतलब पूरा जो सिस्टम है, हैज़ अ स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड अ स्पेसिफिक रिप्रेसर। तो प्रोसेस को कंप्लीट करने या चलाने के लिए ऑपरेटर और रोकने के लिए रिप्रेसर रहता है। यूजुअली ऑपरेटर बाइंड्स टू अ रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये कैसे होता है देखिए, यहाँ पे देखिए ये रिप्रेसर और ये बाइंड हो गए आपस में। देन इसने ऑपरेटर को वर्क करने दिया एंड द मैसेंजर आरएनए इज एबल टू बी फॉर्म्ड। तो ये इस तरह से लैक ओपेरॉन का जो पूरा सिस्टम है वर्क करता है ना। अभी यहाँ पे प्रोसेस इज continuously going on, means formation of messenger RNA is going on. That means the process of translation is taking place. Now we'll see how the lac operon operates. Operon क्या है? It is an arrangement where a polycistronic gene is regulated by a common promoter
एंड रेगुलेटरी जीन्स। तो 2 चीज़ें हैं, कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स। लैक ओपेरॉन के अलावा और भी हैं, टीआरपी ओपेरॉन, हेस ओपेरॉन, वेल ओपेरॉन आर द अदर एग्जाम्पल्स। The elucidation of lac operon as a transcriptionally active system was first done by geneticist Jacob and Monod। तो इन्होंने ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। Now let us see the structure of lac operon। देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं। नंबर 1 I gene which is inhibitor। तो I gene act as inhibitor and it codes for the repressor of lac operon, means ये लैक ओपेरॉन को रिप्रेस करेगा, रोकेगा। तो दिस विल रिप्रेस। Z जीन इज द स्ट्रक्चरल जीन एंड इट कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दैट मीन्स लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो वो एंजाइम है जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है। Y जीन इज ऑल्सो द स्ट्रक्चरल जीन, इट कोड्स फॉर परमीएज। नाउ Y जीन क्या करता है, परमीएज का फॉर्मेशन करता है एंड परमीएज इज एन एंजाइम which increases the permeability of cell membrane for beta galactosidase। तो क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया का सेल है और हम उसको ग्रो करवा रहे हैं लैक्टोज की प्रेजेंस में, तो परमीएज एंजाइम विल इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन सो दैट लैक्टोज कैन एंटर बाय आफ्टर द ब्रेकडाउन। तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन भी होगा, वो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एंड A gene is there, it is also structural gene and it codes for trans acetylase। तो ये एंजाइम भी काम में आएगा। All these enzymes are required in this process। इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज एक्ट्स एज एन इंड्यूसर। लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ही लैक ओपेरॉन ऑपरेट होगा, तो इसलिए इसको इंड्यूसर कहते हैं। सिंस इट रेगुलेट्स द स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ द ओपेरॉन। दिस टॉपिक लैक ओपेरॉन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे ऑपरेट होता है, और ये 2 केसेस में 2 तरह से ऑपरेट होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर एंड इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। तो आपको दोनों तरीके बहुत अच्छे से समझने हैं। इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड टू द ग्रोथ मीडिया, अभी जैसे मैंने बताया ई कोलाई बैक्टीरिया अगर हम लैक्टोज की प्रेजेंस में ग्रो करवाते हैं, तो इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड टू द ग्रोथ मीडिया ऑफ बैक्टीरिया इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर कार्बन सोर्स, देन इट इज ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द सेल बाय परमीएज। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो परमीएज की हेल्प से लैक्टोज अंदर एंटर कर पाएगा। फॉर परमीएज टू बी प्रेजेंट एंड लैक्टोज टू एंटर, लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन मस्ट बी प्रेजेंट ऑल द टाइम। नाउ अगर एब्सेंट है ना, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर आई जीन ट्रांसक्राइब टू सिंथेसाइज रिप्रेसर और रिप्रेसर mRNA। अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो आई जीन किसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा, रिप्रेसर mRNA का। अब ये रिप्रेसर mRNA ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा एंड इट विल नॉट अलाउ ऑपरेटर को अलाउ नहीं करेगा आगे के प्रोसेस के लिए। तो दिस रिप्रेसर बाइंड्स विद ऑपरेटर रीजन ऑफ ओपेरॉन एंड प्रिवेंट्स RNA पॉलीमरेज। ये RNA पॉलीमरेज को बाइंड नहीं होने देगा और ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट नहीं होने देगा। एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दीज जीन्स विल नॉट टेक प्लेस। तो Z, Y और A का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा and the whole process will stop। Now see, therefore in absence of the products of these genes, इनके products नहीं बनेंगे तो लैक्टोज का वो नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, देखो यहाँ पे एब्सेंट है तो mRNA रिप्रेसर बनाएगा और ये ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा। रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स RNA पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा उन तीनों जीन्स का। दिस डायग्राम इज इन योर बुक ऑल्सो, पेज 117, फिगर 6.14। इस एनिमेशन से आप देख सकते हो ये रिप्रेसर mRNA बाइंड हो गया ऑपरेटर से और ये DNA पॉलीमरेज को आगे का वर्क नहीं करने दे रहा है ना। देखो फिर नाउ लेट अस सी इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, कैसे इंड्यूसर की प्रेजेंस में काम होगा। तो इंड्यूसर अगर प्रेजेंट है, इंड्यूसर क्या है यहाँ पे, लैक्टोज, तो इट बाइंड्स विद द प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ जीन I एंड इनएक्टिवेट्स इट। तो वो रिप्रेसर जीन को तो इनएक्टिवेट कर देगा। दिस इनएक्टिवेटेड रिप्रेसर इज अनेबल टू इनएक्टिवेट RNA पॉलीमरेज। तो पहले तो क्या हो रहा था, RNA पॉलीमरेज भी इनएक्टिवेट हो रहा था, लेकिन अब RNA पॉलीमरेज तो एक्टिवेट हो जाएगा और ये तीनों जीन्स जो हैं Z, Y एंड A, इनका सिंथेसाइज, दे विल सिंथेसाइज देयर रेस्पेक्टिव mRNA। तीनों अपना अपना mRNA बनाएंगे, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन होगा
विच इन टर्न गेट्स ट्रांसलेटेड टू फॉर्म बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये इस एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए हम ये पूरा लैक ओपेरॉन समझते हैं। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बन जाएगा जिससे लैक्टोज का ब्रेक डाउन होगा, परमिएज विल इंक्रीज द परमिएबिलिटी एंड ट्रांस एसिटाइलेज विल ऑल्सो हेल्प इन द होल प्रोसेस। ये डायग्राम का सेकेंड पार्ट है लैक ओपेरॉन का इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। तो यहाँ पे देखो mRNA बना, इंड्यूसर ने इनएक्टिवेट कर दिया रिप्रेसर को, तो ये यहाँ पे ऑपरेटर से ज्वाइन नहीं होगा। ऑपरेटर से ज्वाइन नहीं होगा तो DNA पॉलीमरेज आगे की प्रोसेस को, मतलब इन तीनों जीन्स के को ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन करने से बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमिएज और एसिटाइलेज ये तीनों एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा। नाउ विल डिस्कस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट और ये मेगा प्रोजेक्ट है। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज अ मेगा प्रोजेक्ट। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि वाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। तो ये एक तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी लगा था और बहुत सारे एक्सपेंसेस हुए, इस वजह से इसको मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। तो जॉइंट वेंचर ऑफ US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ लेटर जॉइंट बाय वेलकम ट्रस्ट UK, इन्होंने लॉन्च किया इस प्रोजेक्ट को इन 1990 में लॉन्च किया था एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 2003। तो अराउंड 13 ईयर्स इसमें लग गए। The project worked towards the determination of complete DNA sequence of human। तो humans का पूरा DNA sequence बनाया गया इसमें। DNA is the storehouse of genetic information, ये हम जानते ही हैं, है ना। तो and this project helped in medical, agricultural and environmental and evolutionary mysteries को solve करने में ये बहुत काम में आता है। Now bioinformatics, देखो ये सारा जो सीक्वेंस बनाने के लिए बहुत सारा डाटा इकट्ठा हुआ, तो उसको स्टोर करने के लिए बहुत मुश्किल था। सो ह्यूमन जीनोम कंटेन्स नॉर्मली 3 × 10⁹ बेस पेयर्स। तो ये तो बेस पेयर्स का नंबर है। कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग 1 बेस पेयर आता है $3। तो $1 लगेगा एक बेस, सॉरी $3 लगेगा एक बेस पेयर के लिए। तो यू कैन सी दैट 3 × 10⁹ बेस पेयर को $9 बिलियन का एक्सपेंस आया। एनॉर्मस सीक्वेंस डेटा सो जनरेटेड वुड हैव रिक्वायर्ड, अगर ये बुक्स में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते तो इसको 3300 बुक्स लगती और हर बुक 1000 पेज की होनी थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना, इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। नाउ फॉर स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड एनालाइजिंग दिस डाटा अ न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वॉज डेवलप्ड जिसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो पूछा जा सकता है आपसे व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो पूरे डाटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना और एनालाइज करने के लिए ये बनाया गया। तो पूरा सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर्स में ये डाटा स्टोर किया। जीनोम्स ऑफ मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल सच एज, कुछ ये बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह को भी यूज़ किया गया, इनके जीनोम की भी सीक्वेंसिंग की गई थी। नाउ गोल्स ऑफ HGP, क्या इनका पर्पस था? टू आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन DNA, सबके बारे में पता लगाना, आइडेंटिफाई करना एंड डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन DNA, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, अगर किसी भी चीज़ को रेफर करना हो तो उसके लिए, एंड ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्रीज एंड एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। किसी भी बात को लेकर अगर कोई इश्यूज होते हैं तो उनको भी ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही सॉल्व किया जाएगा। नाउ किस तरह से जीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके दो मेथड्स हैं। EST, दैट इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स एंड सीक्वेंस एनोटेशंस। सो दीज आर द टू मेथड्स टू आइडेंटिफाई जीन्स। फर्स्ट को देखें हम, एज द नेम सजेस्ट दे रेफर्स टू द पार्ट ऑफ DNA दैट इज एक्सप्रेस्ड। नाम ही इसका एक्सप्रेस्ड है, तो वो पार्ट जो एक्सप्रेस होगा दैट इज ट्रांसक्राइब्ड एज मैसेंजर RNA एंड ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स, तो ये कहलाता है EST मेथड। दूसरा एनोटेशन, इट विल कंटेन एंटायर जीनोम, कोडिंग, नॉन कोडिंग सब आ जाएगा इसमें, तो ये एनोटेशन मेथड। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए DNA के फ्रेगमेंट्स किए जाते हैं, आइसोलेट किया जाता है पहले किसी बैक्टीरिया में से या यीस्ट में से DNA को आइसोलेट करते हैं, उसके पीसेस करते हैं स्मॉलर साइज में, देन उसको किसी होस्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम आगे बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द DNA फ्रेगमेंट्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर।
देन उसका एम्प्लीफिकेशन होता है। नाउ कॉमन वेक्टर्स यूज्ड आर BAC, दैट इज बैक्टीरियल यीस्ट क्रोमोसोम, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये दो तरह के वेक्टर्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द कॉमन वेक्टर्स यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस, एंड कॉमन होस्ट आर बैक्टीरिया एंड यीस्ट। ऑटोमेटेड सीक्वेंसेस आर यूज्ड टू सीक्वेंस दीज स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। तो ये सैंगर सीक्वेंसिंग, सैंगर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये सीक्वेंसेस बनाए थे। द सीक्वेंसेस आर अरेंज्ड ऑन बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग रीजन्स। देखो जो DNA का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो एक जैसा होता है, मतलब बहुत सारे लोगों का DNA अगर कंपेयर करें तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इज सेम, लेकिन सिर्फ कुछ पार्ट जो डिफरेंट होता है जो हर इंडिविजुअल को एक दूसरे से डिफरेंट करता है। तो अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंसेस इज ऑल्सो डन ऑटोमेटिकली बाय कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एंड देन दीज सीक्वेंसेस आर एनोटेटेड एंड असाइन्ड टू ईच क्रोमोसोम। देन we'll see preparation of genetic code and physical maps on genome. There are two methods, एक तो restriction, polymorphism and microsatellites। ये दो methods use किए जाते हैं for genetic map बनाने के लिए या physical map बनाने के लिए। restriction polymorphism क्या है? It is the specialized enzyme called restriction endonuclease। तो इस enzyme का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये molecular seizure है, ये DNA को कट करने में काम में आता है। Then माइक्रोसैटेलाइट्स है, दीज आर द रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस। जो DNA सीक्वेंस बहुत बार रिपीट होते हैं, बेसिस बहुत बार रिपीट होंगे, तो उस पार्ट को हम माइक्रोसैटेलाइट्स कहते हैं। नाउ द फीचर्स ऑफ HGP आर दैट इट कंटेन्स, ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3 × 10⁹ बेस पेयर्स, एन एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस। हाउएवर द साइज ऑफ जीन्स वेरीज, लार्जेस्ट जीन इज डिस्ट्रोफिन जिसमें कि 2.4 बेसिस है, मिलियन बेसिस, and total number of genes in human genome are 30,000। तो ये features हैं। Over 50% of the discovered genes have unknown function। अभी हमें पता ही नहीं है इतना सारों का। तो less than 2% of genome is coding। Large portion of genome consists of repeated sequence। तो बहुत सारा part तो repeat में ही रहता है। Repeated sequences have no coding function and they are repeated 100 to 1000 times। They may have role in evolution। क्रोमोसोम विद मोस्ट जीन्स, सबसे ज़्यादा जीन्स क्रोमोसोम नंबर 1 में होते हैं। कितने होते हैं? 2968। और सबसे कम जीन्स होते हैं क्रोमोसोम Y में, दैट इज 231। नाउ देयर इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म आल्सो। इट ऑकर्स एट अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस इन ह्यूमन DNA। तो ये इतनी बार रिपीट होता है। दे आर बिलीव टू हैव सिग्निफिकेंस इन एक्सप्लेनिंग डिजीजेस के बारे में पता लगाने के लिए, और एवोल्यूशन से रिलेटेड बातें पता लगाने के लिए ये काम में आता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट DNA फिंगरप्रिंटिंग, किस तरह से DNA फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। नाउ व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो इट इज़ द मेथड ऑफ कंपेयरिंग DNA ऑफ 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। दो लोगों के DNA को कंपेयर करने के लिए जो मेथड हम काम में लेते हैं, दैट इज DNA फिंगरप्रिंटिंग। जैसा कि मैंने अभी बताया, 90.9% ऑफ द सीक्वेंसेज इन ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम, ओनली 0.1% जो है वो डिफरेंट होता है। इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क टू सीक्वेंस एंड कंपेयर। सारे बेसिस को सीक्वेंसिंग करना, फिर उसको कंपेयर करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो क्या करते हैं, सिर्फ जो रिपीटेड DNA है उसको यूज़ करते हैं और उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं। बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इज दैट इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क जीनोमिक DNA सिंस इट अपीयर्स एज अ डिस्टिंक्ट पीक। मतलब ये अलग ही दिख जाएगा हमें, जो रिपीटेड DNA होता है वो अलग ही दिख जाएगा और उसको हम सेपरेट करते हैं पहले। मेजर पीक फॉर्म्ड बाय बल्क DNA एंड स्मॉलर पीक्स आर फॉर्म्ड बाय सैटेलाइट DNA। Satellites are again of 2 types, microsatellites and mini satellites, depending upon the base composition and length of segment and the number of repetitive units. Now satellites do not code for proteins but have a major role to play in DNA fingerprinting. तो इसका रोल इम्पॉर्टेंट तो बहुत है, लेकिन ये इसके किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करता है। Now what is polymorphism? ये समझना ज़रूरी है। Polymorphism is actually a result of mutation। मतलब जो डिफरेंस आया है, जो चेंज आया है, वो पॉलीमॉर्फिज्म है। अ जर्म सेल म्यूटेशन, अगर किसी जर्म सेल में म्यूटेशन होता है तो दैट म्यूटेशन विल कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन। So it can pass to the next generation through sexual reproduction and it give rise to polymorphism in population। मतलब वेरिएशन आएगा इससे। In other words, an inheritable mutation if observed in higher frequency in a population is known as polymorphism। So please underline this definition also in your book, that
what is polymorphism. Now polymorphism arise normally in non-coding sequence because mutations in non-coding sequence do not affect an individual's reproductive ability. तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा. Now we'll see how fingerprinting takes place. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स. जैसे अभी हमने बात की थी, कुछ पार्ट जो DNA का है वो रिपीट, उसमें बेसिस बहुत रिपीट होते हैं. तो दीज आर द VNTR द सैटेलाइट DNAs दैट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म होगा वो ही VNTR कहलाएगा. तो उसी को लेकर फिंगरप्रिंटिंग करते हैं. तो VNTRs आर यूज्ड एज प्रोब्स इन DNA फिंगरप्रिंटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल DNA फ्रॉम एन इंडिविजुअल इज आइसोलेटेड. जिसका DNA चेक करना है उसको आइसोलेट करेंगे एंड इट इज कट विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. तो ये एंजाइम यूज होता है फॉर कटिंग द DNA. देन दीज फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये मेथड यूज होता है. इससे क्या होगा, अलग अलग साइज में वो अरेंज हो जाएंगे. फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल आर ब्लॉटेड ऑन अ सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइलॉन और नाइट्रोसेल्युलोज. तो इसके लिए ये एक मेम्ब्रेन यूज होती है जिसमें इसकी ब्लॉटिंग होगी और ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे. इमोबिलाइज्ड फ्रेगमेंट्स आर हाइब्रिडाइज्ड विद अ VNTR प्रोब. तो जो आगे बढ़ जाएंगे वो तो निकल जाएंगे, बट जो इमोबिलाइज्ड फ्रेगमेंट्स हैं वो VNTR के साथ हाइब्रिडाइज होंगे. एंड हाइब्रिडाइज्ड फ्रेगमेंट DNA कैन बी डिटेक्टेड बाय ऑटो रेडियोग्राफी. तो दिस इज द वे हाउ DNA फिंगरप्रिंटिंग इज डन. एंड VNTRs vary in size from 0.1 to 20 kb. Hence in the autoradiogram band of different sizes will be obtained. तो हमें आप देखो डायग्राम पेज नंबर 123 पर है ना, DNA फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको बैंड्स नज़र आएंगे VNTR के. तो दीज बैंड्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल. हर इंडिविजुअल के वो बैंड्स VNTR के जो बैंड्स हैं वो स्पेसिफिक होंगे, रिपीट एक जैसे किसी के भी नहीं होंगे एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस. जो ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, उनका सेम हो सकता है. अदरवाइज नो टू इंडिविजुअल हैव द सेम बैंड्स. यहाँ देखो, जैसे ये एक अलग इंडिविजुअल है एंड दिस इज अनदर इंडिविजुअल. अब ये यहाँ पे आप देखिए, ये पैटर्नल क्रोमोसोम मीन्स फादर का क्रोमोसोम. अपना जो क्रोमोसोम का पेयर होता है उसमें से एक फादर का होता है, एक मदर का होता है. तो दिस इज पैटर्नल, दिस इज मैटर्नल. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पेयर ऑफ क्रोमोसोम. ये दूसरा, ये क्रोमोसोम नंबर 7 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये क्रोमोसोम नंबर 16 है. तो ये कोई भी इंडिविजुअल A है. ठीक है, दो लोगों का हमने ये मान लीजिए फिंगरप्रिंट लिया और ये दूसरे का है. इसमें देख सकते हो आप, इसका VNTR अलग है, इसका VNTR अलग है. इसमें जो बैंड्स हैं वो नंबर ऑफ बैंड्स आर डिफरेंट. इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है. नाउ जो क्राइम सीन पे से अगर किसी का कुछ भी मिलता है, ब्लड मिलता है, हेयर मिलता है, कुछ भी मिलता है, उसमें से भी DNA सीक्वेंसिंग की जा सकती है. तो दिस इज द DNA फ्रॉम क्राइम सीन. अब जिस पे डाउट है उनके DNA फिंगरप्रिंट्स लेकर इससे कंपेयर करते हैं. तो सपोज वी कंपेयर दिस DNA सीक्वेंसिंग फ्रॉम विद दीज टू. तो अब आप देख सकते हो कि ये किससे मैच कर रहा है, दिस वन. ठीक है, तो इससे मैच कर रहा है. दैट मीन्स द जो सस्पेक्ट है या जिसने क्राइम किया है, इस तरह से उसका पता लगाया जा सकता है कि दिस पर्सन मस्ट हैव डन द क्राइम. एंड दीज आर द एम्पलीफाइड रिपीट्स सेपरेटेड बाय साइज ऑन अ जेल. दे आर गिविंग अ फिंगरप्रिंटिंग. आप एक इससे भी समझ सकते हो, ये DNA फ्रॉम द सस्पेक्ट है, ये इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल से देख रहे हैं. एंड दिस इज द DNA फ्रॉम ब्लड स्टेन. जो क्राइम सीन पे जो ब्लड स्टेन मिला होगा उसको ये कंपेयर कर रहे हैं. नाउ DNA फिंगरप्रिंटिंग इज वाइडली यूज्ड. इसके क्या यूजेस हैं? तो फिंगरप्रिंटिंग के यूजेस ये हैं कि इट इज़ यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस since every DNA of every tissue from an individual has the same degree of polymorphism. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प करती है. क्या कहाँ हेल्प करती है? जैसे पैटर्निटी टेस्टिंग में एंड सिंस अ चाइल्ड इनहेरिट्स पॉलीमॉर्फिज्म फ्रॉम बोथ इट्स पेरेंट. तो फिर मैच हो जाता है, वो जो पॉलीमॉर्फिज्म मैच होगा तो उससे ये पैटर्निटी के बारे में पता लगाया जा सकता है. एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर स्टडिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी in population and evolution. So this was all about your chapter and we have discussed all the topics. I hope you would have understood
and if you have doubts, we will discuss in the doubt session. Okay, till then, take care, have a nice day.